پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان کی بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصل خانے آمد، قونصل جنرل ابرار حسین اور دیگر عملے نے پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر سے ایم پی ناز شاہ، مقامی کونسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے ملاقات کی، اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں بریڈ فورڈ سے وقار بابر مغل کی رپورٹ میں۔ پاکستان ہائی کمشنر لندن معظم احمد خان کا یہ بریڈ فورڈ کونسلیٹ کا پہلا دورہ تھا۔ ان کی آمد پر لارڈ میئر کونسلر شبیر حسین، شیڈو وزیر ناز شاہ ایم پی، یارکشائر کے مختلف شہروں کے کونسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھی ان کو بریڈ فورڈ کے پہلے دورے پر خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر کمیونٹی سے گفتگو کرتے ہوئے ہائی کمشنر معظم احمد خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں بریڈ فورڈ شہر کو خصوصی حیثیت حاصل ہے اور اس شہر سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں صف اول کا کردار رہا ہے۔ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کی جو انرولمنٹ ہے خاص طور پہ یونیورسٹی لیول تک وہ بہت کم ہے، تو یہ میری اگین آپ لوگوں کی وساطت سے اپنے اپنے ینگسٹرز کو بھی اور جو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں کہ وہ اپنے ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے اس کو امپورٹنس دیں، اور ایز اے سیڈ بزنس تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن میرا خیال میں ایجوکیشن از ایکولی ویری امپورٹنٹ۔ کمیونٹی رہنماؤں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ہائی کمشنر معظم احمد خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں بسنے والی اوورسیز کمیونٹی اپنی نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ وہ کمیونٹی کی بہتر خدمت کر سکیں۔ اس موقع پر ہائی کمشنر معظم احمد خان نے پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ نئے پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو کامیاب بنائیں۔ اس سے جہاں ملک کی معیشت مضبوط ہوگی وہاں اوورسیز کمیونٹی کو بھی بہت فائدے ہوں گے۔ اور میری ان سے یہی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں اس کو اب اور بھی مزید بڑھانا ہے، اور خاص طور پہ میں آپ لوگوں کے وساطت سے اپنے سارے جو بریڈ فورڈ کے جو ہمارے جو پاکستانی ہیں یا برٹش اور پاکستانی اوریجن ہیں، میں ان کو خاص طور پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ایک حکومت پاکستان ایک آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت ہی زبردست ایک انیشیٹو جو ہے وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کا اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے جو دیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے لوگ اس سے پوری طریقے سے مستفید ہوں گے، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ پاکستان کے لیے ایک جو اوبیسلی جو فارن ایکسچینج ہے وہاں پر پہنچا سکیں گے، لیکن یہ آپ کے لیے بھی بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں ڈالر یا پاؤنڈ کے حوالے سے جتنا زبردست اس کے اوپر جو ریٹ آف ریٹرن ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے خاص طور پہ بریڈ فورڈ کے ہمارے جتنے بھی ہیں لوگ، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس کو بھی دیکھیں، اور یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے۔ سابق لارڈ میئر ظفر علی، سابق یورپی ممبر پارلیمنٹ شفق محمد، سابق لارڈ میئر غضنفر خالق، کونسلر نصرت محمد، سابق میئر ڈینکاسٹر ماجد علی، کونسلر سبیحہ خان، کونسلر رضوانہ جمیل، ڈپٹی کونسل لیڈر کونسلر اور دیگر نے پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان کو بریڈ فورڈ کونسلیٹ کی شاندار خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں اور دیگر شخصیات نے کونسلیٹ میں وی آئی پی کلچر کے خاتمے اور عوام کو بہترین سروس فراہم کرنے پر عملے کی تعریف کی۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ خصوصی ٹورز کا اہتمام کیا جائے تاکہ برٹش پاکستانیوں کا اپنے وطن سے رشتہ مزید مضبوط ہو۔ Pakistani consulate to meet with the Commissioner. I'm one of the councillors here in Bradford, and I really look forward to working with him closely. I would like to welcome the High Commissioner to Bradford, and taking his important to listen to our views and concerns of our residents and constituents. It's a brilliant opportunity for us as elected members to raise our concerns. ہمارے ہائی کمشنر پاکستان لندن کا جو تشریف لائے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بڑی زندہ دلی ہے کہ یہاں تشریف لائے اور پاکستانیوں سے انہیں ملے، ان کے مطالبات سنیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کے مطالبات جو سنے ان پہ عمل کریں گے۔ I'm so grateful that the High Commissioner has given his valuable time to come up to Bradford. We represent large population of Pakistani community here, and it's nice that from Bradford Council perspective to work in conjunction. It was a pleasure to welcome the Pakistani High Commissioner to Bradford today, and to hear and to sit with us and listen to our concerns and our issues which are pertinent to the British Pakistani residents which we represent on a day-to-day basis. A really positive meeting with the High Commissioner of Pakistan in Bradford this afternoon. First of all, we welcome him to our great city, and we thank him for taking the time to come here and discuss some really important topics pertaining the Pakistani community here in Bradford and across
course. I am Councillor Imran Khan, Deputy Leader of Bradford Council. I'm really pleased that the Pakistan High Commissioner has come to Bradford here today to listen to the concerns of local residents. I think it's really important that people like the High Commissioner come to places like Bradford because that connection with the community, with councillors, with businesses is really, really important. हमने ये जो issues discuss किए हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी से के issues जो थे हमें उम्मीद है कि हम issues को हल करेंगे मिलकर काम करेंगे इस तरह का इंटरेक्शन ज़्यादा रहे आउटरीच वर्क ये करते रहें ताकि जो आवाम के मसाइल हैं उनको खुद सुन के जाएं और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो पाकिस्तानी जो यहाँ डायस्पोरा कम्युनिटी है वो वैसे ही सफ़ीरान पाकिस्तान है तो उनको इस तरह के इंटरेक्शन से डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होगा वो बढ़ेगा। MP नाज शाह ने ब्रिटिश पाकिस्तानियों की बरतानिया में अजीम कामयाबियों के सफ़र और उनकी खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो न सिर्फ इनफरादी हैसियत से बरतानवी मुआशरे में पाकिस्तान की मुस्बत शनाख्त को नुमायां करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे हाई कमिश्नर आए हुए थे यहाँ मौज़म अली खान हमारे हिज एक्सलेंसी यहाँ पाकिस्तान के फर्स्ट सिटीजन और ब्रैडफोर्ड को अक्सर छोटा पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत है यहाँ उन्होंने खूब अपने ख्यालों का इजहार किया और यहाँ मीटिंग बहुत कामयाब हुई। मैं शुक्रिया करती हूँ मौज़म अली खान का भी जो हिज एक्सलेंसी है यहाँ के जो इब्रार खान हमारे कौंसल जनरल है जो वो हमारी अवाम के लिए वो जो काम करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। वकार बाबर मुगल 92 न्यूज़ ब्रैडफोर्ड। बर्मिंघम में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई। लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के रहनुमाओं ने आर्टिंगटन में होने वाले इलेक्शन में मुहिम का आगाज़ कर दिया जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लेबर पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने शिरकत की। शैडो मिनिस्टर MP नाज शाह तकरीब की मेहमान खुसूसी थीं। तफसीलात खबर आचा की रिपोर्ट में देखिए। लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ने बर्मिंघम के इंतखाबी हल्के आर्टिंगटन से ज़िमनी इलेक्शन के लिए लेबर उम्मीदवार पैलेट हैमिल्टन की हिमायत और तायद का ऐलान कर दिया है। लेबर MP जैक ड्रोमी की वफात से खाली होने वाली पार्लिमानी नशिस्त पर दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। इस सिलसिले में लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ने लेबर पार्टी के उम्मीदवार के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया जिसमें लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शहरो मिनिस्टर नाज शाह ने खुसूसी शिरकत की जबकि तकरीब में शरीक लेबर पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान ने प्लेकार्ड्स कतबे उठा रखे थे जिन पर पैलेट हैमिल्टन के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर ब्रैडफोर्ड से शैडो मिनिस्टर MP नाज शाह, MP शबाना महमूद, सेक्रेटरी जनरल लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर काउंसलर वसीम जफर और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कंजर्वेटिव हुकूमत ने अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से पूरी कौम को मायूस किया है। हुकूमत को गरीब और मुतवस्सित तबके की कोई परवाह नहीं है। जरूरी है कि आर्टिंगटन के ज़िमनी इलेक्शन में लेबर उम्मीदवार को कामयाब करवाया जाए। आज हमें बहुत खुशी हुई है कि हम आज यहाँ आए हैं लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के हवाले से हमारा आज एक्शन डे है। देख रहे हैं कितने लोग यहाँ आए हुए हैं क्योंकि हमारी जो कैंडिडेट है पॉलेट उसको हमने इस इलेक्शन में जिताना है। वापस जाकर लेबर की MP इंशाल्लाह बनेगी और मैं यही गुजारिश करूंगी कि देखें जितने भी यहाँ के लोग हैं अपना वोट ज़रूर उसको कास्ट करें। 3 तारीख अगले महीने की 3 तारीख को हमारे लिए बहुत अहम है। लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर लेबर पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो हमारी आवाज़ सुनती है और हमने बहुत काम करना है कश्मीर के हवाले से। देखें वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ जो जुल्म हो रहे हैं, उस दिन कहा था कि चक्की की तरह पीस रहे हैं हमारे बहन भाई, उनकी आवाज़ें हमने पहुंचानी है पार्लियामेंट तक। The cause of the Kashmiri people is something that's very close to my heart, very close to the heart of all of those who are involved in Labour Friends of Kashmir. We're an organisation within the Labour Party, and within the Labour Party we make it our job to advocate for the self-determination and the human rights of the peoples of Kashmir. Councillor Wasim Zafar, General Secretary of Labour Friends of Kashmir. Today we've got 2 outstanding parliamentarians, Shabana Mahmood, the National Campaign Coordinator, and Naz Shah, the Member of Parliament for Bradford West, embarking on us here in Birmingham Erdington, where we've got dozens of Labour Friends of Kashmir activists who've all come together. शुरका ने मजीद कहा कि लेबर पार्टी अवामी मयार को बुलंद करने के लिए जामे प्रोग्राम रखती है। बरतानिया में मकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल में संजीदगी के साथ लेबर पार्टी ने हमेशा मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के हक़ खुद इरादियत की भी हिमायत की है। इंतहाई ज़रूरी है कि कश्मीर का जो मसला है वो पार्लियामेंट तक उसकी आवाज़ उठाई जाए और जो कश्मीर में मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीरी पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसकी अवेयरनेस जितनी की जाए वो इंतहाई ज़रूरी है। My name is Steve McCabe. I'm the Member of Parliament for Selly Oak in Birmingham and I'm here helping out because Jack Dromey was obviously my friend and
Paulette Hamilton is just a brilliant Labour candidate, and we've got to get her elected. It's brilliant to be here as part of Labour Friends of Kashmir to support Paulette Hamilton, who's a fantastic candidate, and I know she's going to be a brilliant MP in Birmingham, in Erdington. She's a colleague of mine. I've been working alongside her on the council for many, many years, and I know that she'll be a brilliant voice for the residents of Erdington, and I'm hoping... I am just delighted at the support I have been given this afternoon by the Friends of Kashmir in the community, but not only that, by the Pakistani Kashmirian community that are living in Erdington. They have been phenomenal. I was really lucky to go and visit many years ago when I was a young man. I always have a real strong affection for Kashmir, and I feel very strongly for the troubles and the difficulties that people there have had to endure. And I think Action Day is a time to remember. लेबर पार्टी ने इस नशिस्त के लिए भरपूर मुहिम शुरू कर रखी है, जिसे कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सपोर्ट कर रही है। लेबर पार्टी इस सीट का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खावा राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम के मकामी हॉल में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मुंतखब मेंबर चौधरी कासिम मजीद के एजाज़ में इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया, जिसमें हल्का चकसवारी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके वोटर्स सपोर्टर्स ने भी भरपूर शिरकत की। उन्हें ओवरसीज़ कश्मीरियों की मुश्किलात से आगाह किया गया। पीपल्स पार्टी बरतानिया के अहदेदारान भी बड़ी तादाद में तकरीब का हिस्सा बने। अहवाल देखते हैं बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम बरतानिया का वो शहर है जहां आज़ाद कश्मीर खसूसन मीरपुर, डडियाल, चकसवारी से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी बड़ी तादाद में आबाद हैं। यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर में जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसकी मुहिम का आगाज़ बर्मिंघम से ही होता है, और जब कोई उम्मीदवार कामयाब हो जाता है तो उसको सबसे पहले अपने सपोर्टर से मुलाकात और उनका शुक्रिया अदा करने की गरज से बर्मिंघम ही आना होता है। आज़ाद कश्मीर असम्बली के नौ मुंतखब रुकन चौधरी कासिम मजीद की बर्मिंघम आमद का मकसद भी यही था। हल्का चकसवारी से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर कारोबारी शख्सियत चौधरी खुशनूद ने उनके एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें चौधरी कासिम के सपोर्टर्स के अलावा पीपल्स पार्टी के जियालों और दीगर पार्टी ओहदेदारों को खास तौर पर मदऊ किया गया था। तकरीब की सदारत बरतानिया के मरूफ बिजनेसमैन मियां अहमद मकबूल ने की। तकरीब से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नौ मुंतखब मेंबर चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उन पर जो एतमाद किया है वो इनके लिए इंतहाई फख्र की बात है। सियासत कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। 1985 का इलेक्शन या मुश्किल था, या ये 2021 वाला इलेक्शन। 1985 के अंदर भी यही खानदान इकट्ठे हुए थे, यही टोला इकट्ठा हुआ था। चौधरी कासिम मजीद का कहना था हल्का नंबर 2 मीरपुर के अवाम का वो शुक्रिया अदा करते हैं और वो बिला तफरीक अपने हल्के के अवाम के लिए काम करेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद पहली बार इंग्लैंड आया हूँ, तो आज बर्मिंघम के पार्टी ने, मेरे हल्के के लोगों ने इस्तकबालिया रखा था। ये शुक्रिया मुहिम है कि इन लोगों ने यहाँ से बैठ के भी मेरी सपोर्ट की। इनके अजीज़ व कारब मेरे हल्के के अंदर हैं, इनके ख़ानदान के जो लोग हैं उन्होंने इलेक्शन में मेरी सपोर्ट की। मेरी कंस्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में मेरे लोग कंस्टिट्यूंसी के लोग आबाद हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शुक्रिया मुहिम थी और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, और बिलखुसूस में मीडिया के लोगों का मशकूर हूँ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी कासिम मजीद का कहना था कि वो सिलेक्टेड नहीं बल्कि इलेक्ट हुए हैं। चक हरियाम पुल का मसला हुकूमत के साथ उठाया है, उम्मीद है मार्च में इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह मुतासरीन मंगला डैम के इजाफी कुनबों के हवाले से भी तरजीही बुनियादों पर काम हो रहा है। मुझे लोगों ने सिलेक्ट नहीं, इलेक्ट किया। सिलेक्ट से हमें डर लगता है, मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता। इलेक्ट किया, और मैंने आपको अपनी स्पीच में बताया कि बीइंग असेंबली मेंबर, जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो रठुआ रियाम ब्रिज पे था। ये रठुआ राम ब्रिज का जो काम हुआ है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे उस दौर में शुरू हुआ है। उसके बाद जो पिछली हुकूमत थी ये रुक गया है। अभी हमें फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल मिनिस्टर ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने श्योरिटी दी है कि मार्च में इसका टेंडर होगा और उसके बाद इसका काम शुरू होगा। इस मौके पर तकरीब के मेज़बान चौधरी खुशनूद, आफ्ताब अहमद, मियां अहमद मकबूल और दीगर ने कहा कि कासिम मजीद की कामयाबी में सबसे ज्यादा किरदार ओवरसीज कश्मीरियों ने अदा किया है। कासिम मजीद साहब नौजवान की आदत लेकर सामने MLA बने हैं। इंशाल्लाह हम नौजवान की आदत पर ये पूरी उम्मीद है कि वो मसला कश्मीर को उजागर करेंगे, और उस सिलसिले में हमें ऐसे नौजवान साथियों और MLA के साथ देना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क इलाके की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। जनाब कासिम मजीद चौधरी साहब ने बर्मिंघम का दौरा किया, हम उनको वेलकम करते हैं। और कासिम मजीद के दौरा से पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन को एक नई तकवीत मिली है, और भुट्टो शहीद के नज़रिए को एक प्रचार मिला है जिसको हम सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कासिम मजीद अवाम के काम करेंगे और अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए भुट्टो शहीद के नज़रिए पर कायम और दायम रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि हल्का नंबर 2 से चौधरी मजीद कासिम जो इलेक्ट हुए हैं, ये मसला कश्मीर को उजागर करेंगे
और आइंदा आने वाले जो हमारी नई जनरेशन है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब मिलकर कश्मीर की आवाज़ बने और कश्मीर के लिए कुछ करें। क्या कश्मीरियों को कश्मीर का हक चाहिए और ये वक्त दूर नहीं है जब कश्मीर आज़ाद हो। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में जारी सियासी गर्मा गर्मी और तहरीक अदम एतमाद के बारे में मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कुछ पाकिस्तानियों का कहना था इमरान खान कौम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सके। एहतसाब का नारा भी महज नारा ही रहा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मजीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। 3 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि अतमद अपोजिशन इमरान खान गवर्नमेंट के खिलाफ अतमद माल आ रहा है। मुझे नहीं यकीन था ये मंजूर होगी या ये इसमें कामयाब होंगे। ये अपना टर्न जो 5 साल का पूरा करके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद आनी चाहिए। इससे हुकूमत को अपनी कोताहियों का पता चलता है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी। कामयाब क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो भी अपोजिशन के पार्टियाँ हैं उनका आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ हाथ कर रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ हाथ कर रही है, मौलाना साहब दोनों के साथ हाथ कर रहे हैं। अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए इन सब को दिल के से एक साथ होना होगा। कि मेरा नहीं ख्याल कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब होगी। उसकी वजह ये है कि ये एक हवा सी बनी हुई है और ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जानी है। इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद काम किए हैं और वो अभी भी काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर ओवरसीज़ के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें पहली दफ़ा वोटिंग राइट मिला है, तो यूथ के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। और बड़ा चूँकि पहली हुकूमतें बड़े अरसे से कोई काम नहीं कर रही थी तो उन्हें बड़ा ग्रॉस रूट लेवल से काम करना पड़ा है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा टाइम और दें इस हुकूमत को, सपोज़ कि अगले 5 साल भी, तो जो कि उन्हें फाउंडेशन स्टार्ट की हैं उसके ऊपर डिलीवरी भी जल्दी से आना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान की आवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। जो मीटिंग हो रही है डिफरेंट जमातों के, पीपल पार्टी, नून और MKM, ये पॉसिबल भी हो सकता क्योंकि कुछ लोग जो ओवरसीज़ के जो काम है वो नहीं हो रहे, क्योंकि ये जो लोकल रिपोर्ट हैं जो लोग हमको अप्रोच करते हैं ओवरसीज़ के लिए, देखो कुछ चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट होने के लिए जो वादा किया था वो नहीं हो रहा। और इसलिए जो अगर लोग दूसरे यूनाइटेड होंगे तो ओबियसली अगर नो कॉन्फिडेंट वो कामयाब हो सकते हैं। ये नहीं करना नहीं हो सकता। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन पाकिस्तान। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर जो शुरू इन्होंने तहरीक की है, जो होने जा रहा है, जो मेरा नहीं ख्याल है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये इस वक्त सूटेबल है पाकिस्तान के लिए, इस रीजन के लिए और स्पेशली ख़ास कर CPAC के लिए। हमें ये देखना है कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है। ठीक है, मसाइल हैं, बहसीत ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें नहीं चाहिए कि, मैं नहीं समझता कि इस वक्त राइट मूव है। अपोजिशन को चाहिए कि थोड़ा इंतज़ार करे और देखें इनके पास ऐसी टीम है, ये ना हो कि जी अभी तो नो कॉन्फिडेंस अगर फ़र्ज़ कीजिए कामयाब हो जाता तो आया इनके पास आइंदा के लिए क्या लाया अमल है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मौजूदा हालात में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़ा है। उनके एजाज़ में मारूफ बिजनेसमैन इमरान चौधरी की तरफ से अशाइया भी दिया गया। तकरीब का हवाला जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा कट, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के इस बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मौजूदा हालात में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़े हैं। UAE मुश्किल वक्त का साथी है, हम भी आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। जिन्होंने यहाँ कुछ इंस्टेबिलिटी की कोशिश की थी। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर असल तब्दीली लेकर आए हैं। मुआशी तौर पर गैर मुस्तहिक मुल्क की गुजारिशात बैनुल अक़वामी दुनिया नहीं सुनती। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहिकम करने के लिए नई खारजा पॉलिसी तश्कील दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मुआशी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया जा चुका है और इसी पर अमल किया जा रहा है। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत ओवरसीज
ICG ग्रुप के चेयरमैन इमरान चौधरी ने किया था। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम करते हुए कहा कि नए पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अक़वाम आलम में पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी की और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दिलाई। उनका कहना था PTI हुकूमत सरमायाकारों से भरपूर ताआवुन करेगी। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई में आलमी नुमाइश एक्सपो 2020 पूरी आबोताब के साथ जारी है। दीगर बेशुमार मेगा इवेंट्स के साथ साथ दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाली दुनिया की बड़ी फूड एग्जीबिशन गल्फ फूड मकबूलियत और कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए कल 17 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगी। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में देखिए। दुबई एक्सपो 2020 पूरी आबोताब से जारी है। वहीं दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुनिया की सबसे बड़ी फूड एग्जीबिशन गल्फ फूड भी मुनक्किद। इस फूड एग्जीबिशन में दुनिया भर की फूड इंडस्ट्री से मुतल्लिका सैकड़ों कंपनीज ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए, जबकि 13 फरवरी से शुरू होने वाली इस नुमाइश में अब तक लाखों अफराद कोविड SOPs के साथ विजिट कर चुके हैं। गल्फ फूड फेस्टिवल में पाकिस्तानी पवेलियन में 93 पाकिस्तानी कंपनीज ने अपने स्टॉल सजाए हैं। मारूफ पाकिस्तानी ब्रांड भी विजिटर्स की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गल्फ फूड में पाकिस्तान पवेलियन का दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल हसन अफजल खान ने दौरा किया। इस मौके पर कमर्शियल काउंसलर रदीम खान, शाजिया सिराज मौजूद भी उनके हमरा थी। इस मौके पर पाकिस्तानी एग्जीबिटर राय जहांगीर सखी खान, सूडान के अबू बकर और दीगर का कहना था कि गल्फ फूड में शरीक इस बार पाकिस्तानी कंपनीज बेहतर और बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक शरीक हैं, जिसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। We are trader, we export and import. We export sesame seed and peanut. We import from Pakistan good rice and also sesame seed. पिछले 8 सालों से आज जो ये साल है काफ़ी बिजी रहा है और काफ़ी बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। और जैसा हमारा पाकिस्तानी पवेलियन है इस साल माशाल्लाह पिछले सालों से काफ़ी बेहतर है और मैं चाहता हूँ जो हमारे एक्सपोर्टर्स है वो आके अगला साल और पार्टिसिपेट करें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के मौके मिले। हर साल हम यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस साल मतलब पिछले 7 साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा क्राउड है और मोर देन 216 कंट्रीज़ लोग यहाँ आए हैं और 4000 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ मौजूद हैं। कोविड की वजह से प्रैक्टिकली गल्फ फूड इस दफ़ा 2 साल के बाद हो रहा है और माशाल्लाह सबसे खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी कंपनीज़ ने बहुत शौक़ से और हिम्मत से यहाँ पे जो है ना वो पार्टिसिपेट किया है। पाकिस्तान से हम स्पेशली चरगोज़े का काम करते हैं। पूरे नार्थ एरियाज जो है ना जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, ये शुमाली इलाका जातूसी से लेके लाते हैं ना। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के डायरेक्टर नफीस अहमद, एजाज अहमद, मुस्तफ़ा अल्ताफ़ और बिजनेस काउंसिल के सीनियर रुकन सैयद आसिफ जमान, अजीज़ अली अकबर समेत पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की मारूफ शख्सियात इमरान बलोच, आरिफ पोलानी, मलिक आफ्ताब, तारिक चौधरी, ज़मीर बंगश और साजिद नवाज ने भी गल्फ फूड का विजिट किया और पाकिस्तान से आई कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।